हाँ जी बेटा, ये अपना ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 29 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਸਪੈਨ। ठीक है, लीनियर स्पैन च अपने को फस्ट डेफिनेशन आ जाती हैगी लीनियर कंबीनेशन दी। ठीक है, लीनियर कंबीनेशन की होंदा है कि जे वी अपने को कोई वैक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड एफ। ठीक है, वी वैक्टर स्पेस गिवन है, फील्ड अपने को एफ है तो जे V1 V2 सो ऑन VN ये सारे के कैपिटल V दे एलीमेंट्स हैं। दैन एनी एलीमेंट V, ठीक है, V कोई भी एलीमेंट हो सकता है जो आप उन्होंने लिख सकते हैं एज α1 V1 प्लस α2 V2 प्लस α3 V3 प्लस सो ऑन αn VN। क्लीयर बेटा, मीनस की है कि ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ V ਦੇ ਬਾਕੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦਾ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਵੇਅਰ α1 α2 ਸੋ ਔਨ αn ਇਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫੀਲਡ ਚੋਂ ਲੱਤੇ ਗਏ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਦੈਟ ਆਰ ਦ ਸਕੇਲਰਸ। ਕਲੀਅਰ, ਇਹਦਾ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ 'ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਮੇਸ਼ਨ α vi ਵੇਅਰ i is equal to 1 to n। clear, then it is called the linear combination of the vectors v1 v2 so on vn over f। clear, ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ v ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ V ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ v ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਵੈਕਟਰਸ ਓਵਰ f। clear, that is the definition of linear combination। ਹੁਣ v ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸਕੇਲਰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਕਰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਦੇਅਰਫੋਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਕੈਪੀਟਲ V ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ V ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਕੈਪੀਟਲ V ਦਾ ਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, V ਨੂੰ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵੀ। ਤੇ ਠੀਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਰ ਵੈਕਟਰ v1 v2 ਸੋ ਔਨ ਵੀ ਸ਼ੈਲ ਗੈਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਹੀ ਲੈਣੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਕੇਲਰਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੀਨੀਅਰ ਸਪੈਨ ਦੀ। ਲੀਨੀਅਰ ਸਪੈਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੀਨੀਅਰ ਸਪੈਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਐਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਨ ਐਮਟੀ ਸਬਸੈਟ ਹੈ of the vector space VF। clear, S is the non-empty subset of the vector space VF, then the set of all linear combinations of ठीक है then the set of all linear combinations of any finite number of elements of S is called the linear span of S। क्लीयर, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ S ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ V ਦਾ ਨੋਨ ਐਮਟੀ ਸਬਸੈਟ ਹੈ, S ਇਜ਼ ਦਾ ਸਬਸੈਟ ਆਫ VF। ਠੀਕ ਹੈ, S V ਦਾ ਇੱਕ ਨੋਨ ਐਮਟੀ ਸਬਸੈਟ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਸਪੈਨ ਆਫ S, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੀਨੀਅਰ ਸਪੈਨ ਆਫ S ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ LS। ਲੀਨੀਅਰ ਸਪੈਨ ਆਫ S ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦ ਸੈਟ ਆਫ ਆਲ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਸੈਟ, ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਸੈੱਟ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦਾ ਸੈੱਟ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਲੀਨੀਅਰ ਸਪੈਨ ਸੈਟ ਆਫ ਆਲ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਐਨੀ ਫਾਈਨਾਈਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਫ ਐਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਨੰਬਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਬਣੇਗਾ that is called the linear span of S। clear, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ LS ਨਾਲ denote ਕਰਦੇ ਹਾਂ linear span of S ਨੂੰ। LS ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ numerically symbolically ਜੇ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ summation I equal to 1 to n ai vi। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦਾ ਐਨੀ ਫਾਈਨਾਈਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਲੀਨੀਅਰ ਸਪੈਨ। ਕਲੀਅਰ, ਇਫ S ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 5, ਜੇ S ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੈੱਟ ਹੋਵੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ 5 ਮੀਨਸ ਉਸ 'ਚ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਸਪੈਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 0 ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਓਕੇ बेटा समझ आ गया कि लीनियर स्पैन की हुंदा है एस जे वी का कोई भी
नॉन एम्प्टी सबसैट है, तो लीनियर कंबीनेशन, ठीक है, एस दे सारे एलीमेंट्स दे लीनियर कंबीनेशनस तो जिहड़ा सैट बनता है, ठीक है, उन्हां सारियां दी कलैक्शन नूं आपां की कहने आ, लीनियर स्पैन कह दिंदे हैगे। नैक्सट अपने कोले जिहड़ी डेफिनेशन आ जाती है, दैट इज़ अ जनरेटर ऑफ द वैक्टर स्पेस। जनरेटर ऑफ वैक्टर स्पेस की है कि जे एस अपने कोले नॉन एम्प्टी सबसैट ऑफ वैक्टर स्पेस वी एफ है, तो एस नूं आपां की कहांगे, एस इज़ कॉल्ड द जनरेटर ऑफ द वैक्टर स्पेस वी एफ। तो एस ही अपने कोले वी एफ का की बनेगा, जनरेटर बनेगा। कदों बनेगा? इफ ईच एलीमेंट ऑफ वी, जे वी दा हरेक एलीमेंट कैन बी एक्सप्रैसड एज द लीनियर कंबीनेशन ऑफ द एलीमेंट्स ऑफ एस, ठीक है, जे वी दा हरेक एलीमेंट एस दे एलीमेंट्स दे नाल लीनियर कंबीनेशन बनाउंदा है, उन्होंने रिप्रजेंट कर सकते हैं लीनियर कंबीनेशन ऑफ द एलीमेंट्स ऑफ एस हरेक एलीमेंट वी दा, तो एस ओदा की बन जाएगा, जनरेटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जनरेटर वाली। जनरेटर जिहड़ा हैगा आपां बहुत यूज़ करांगे अगे, कि जनरेटर आपां किहड़े सैट नूं कहने आ, कि इस सैट नूं आपां जनरेटर कह दिंदे हैगे कि जे एस वी दा हरेक एलीमेंट एस दे सारे एलीमेंट्स दा लीनियर कंबीनेशन बनता है, तो आपां एस नूं की कहांगे, वी दा जनरेटर, क्योंकि ये सारे एलीमेंट्स नूं जनरेट कर रहे हैं ना, क्योंकि ये हरेक एलीमेंट ये हरेक एलीमेंट का कंबीनेशन बन रहा है। जिमें कि आपां समझिए जे कि जे इफ एस इज़ द जनरेटर ऑफ द वैक्टर स्पेस वी है, जे एस की है वी का जनरेटर है, तो वी स्मॉल वी आपने एनी एलीमेंट ऑफ वी लता, तो उत्थे कोई ना कोई एलीमेंट्स V1 V2 सोन Vn एस दे एलीमेंट्स एग्जिस्ट करनगे, कि वी नूं आपां की लिख सकते हैं, इन्हां एलीमेंट्स का लीनियर कंबीनेशन लिख सकते हैं, α1 V1 प्लस α2 V2 प्लस ऑन α n Vn फॉर सम अल्फाज बिलोंग्स टू एफ वेयर आई दी वैल्यू के 1 to n। क्लीयर हो गया बेटा इस चीज़ कि इस तरह वी का हरेक एलीमेंट आपां एस दे एलीमेंट्स का लीनियर कंबीनेशन जो लिख सकते हैं, तो आपां एस नूं की कहने हैं, जनरेटर ऑफ द वैक्टर स्पेस वी एफ। क्लीयर। इस तो बाद आप एग्जाम्पल भी कर सकते हैं, जिमें कि तुहानूं कोई वैक्टर स्पेस V2R दिता होया है, जिस अपने को एक एलीमेंट पिया है अल्फा बीटा, ठीक है, तो एस अपने को एक नॉन एम्प्टी सबसैट है जिहदे एलीमेंट्स है 1 0 तो 0 1। हुण की आपां अल्फा बीटा नूं, ठीक है, जिहड़ा अपने को एलीमेंट है इन्हां दा लीनियर कंबीनेशन लिख सकते हैं। आपां सपोज कर लिया V इज इक्वल टू अल्फा बीटा बी एनी एलीमेंट ऑफ V2, ठीक है, तो V इज इक्वल टू अल्फा बीटा इनू आपां इस तरह जे लिख सकते हैं, अल्फा इंटू 1 0 प्लस बीटा 0 1, ठीक है, तो 1 0 आप E1 तो 0 1 E2 लिख सकते हैं, तो तुहानूं पता ही है। तो जे आप इनू इकट्ठा करिए तो वापस अपने को यही बन जाएगा अल्फा बीटा। तो मीनस की है वी जिहड़ा सीगा कैपिटल वी का एलीमेंट, इनू आप लीनियर कंबीनेशन ऑफ द एलीमेंट्स ऑफ एस लिख सकते हैं, देयरफॉर एस इज़ द जनरेटर ऑफ V2। ओके, नैक्सट जी अपने को थ्योरम हैगी उस की है कि प्रूव करना है कि जो लीनियर स्पैन होंदा है, ठीक है, लीनियर स्पैन की डेफिनेशन कराई सी तुहानूं, जो लीनियर स्पैन है ऑफ एनी सबसैट एस ऑफ ए वैक्टर स्पेस वी एफ इज़ ए सब स्पेस ऑफ वी एफ। देखो सब तो पहले तो याद रखना है लीनियर स्पैन होंदा की है, लीनियर स्पैन की सीगा एस दे सारे एलीमेंट्स का लीनियर कंबीनेशन, ठीक है, जिन्ने भी एलीमेंट्स हैं उन्होंने सब का लीनियर कंबीनेशन का जो सैट बनता है, ठीक है, वो की अपने को लीनियर स्पेन बनता है। तो आप शो करना है जो लीनियर स्पेन होगा वो की है अपने को सब स्पेस बनाना। देखो सब स्पेस वास्ते तुहानूं पिछे मैं दस्सिया सीगा, जो आप सब स्पेस बनाना होंगे किसी भी सैट नूं, तो आप की करते हैं कोई भी वो दो एलीमेंट्स लवांगे, तो नाल दो स्केलर्स लवांगे, तो अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई उस सैट नूं जे बिलोंग्स टू कर गया तो सब स्पेस बन जाएगा। आपने थर्ड थ्योरम की सी ये पिछली एक्सरसाइज दे विच, तो उही थ्योरम इत्थे आपां अप्लाई करांगे। तो सब तो पहला आपां की करांगे LS दे दो एलीमेंट्स चूज़ करांगे, स्केलर्स आपां ले लवांगे अल्फा ते बीटा। क्लीयर। तो पहला आप ये वास्ते LS दे एलीमेंट्स चूज़ करिए, तो आपने सपोज कर लिया V तो W की है LS दे दो एलीमेंट्स है। क्लीयर।
क्योंकि ये LS ਦੇ एलिमेंट्स है लीनियर स्पैन ਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ किस तरह के एलिमेंट्स होणगे, समेशन अल्फा i vi वेयर i इज इक्वल टू 1 to n। क्लीयर, क्योंकि LS च किस तरह के एलिमेंट्स है, कंबीनेशनस वाले है ना, ਜਿਹੜੇ कि लीनियर कंबीनेशनस बनाते हैं। तो आप ओबीअसली लीनियर कंबीनेशनस ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, एक सैट ਨੂੰ लिख लिया v अल्फा i vi ਤੇ दूसरे ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ w समेशन बीटा j w j i वेयर j इज इक्वल टू 1 to m। तो v ਤੇ w ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਏ ਟੂ ਸ਼ੋ ਇਹਨੂੰ ਲੀਨੀਅਰ ਸਪੇਨ ਨੂੰ सबस्पेस ऑफ वी एफ शो करने वास्ते दो स्केलर्स आपने ए ते बी एफ दे चूज कर लेंगे, वी ते डब्ल्यू एल एस दे एलीमेंट्स है। तो हुण आपां शो की करना है ए वी प्लस बी डब्ल्यू बिलोंग्स टू एल एस। ठीक है, जे इनू चला जाऊगा तो यह की बन जाएगा, लीनियर सबस्पेस बन जाएगा। तो सब तो पहले आप इसकी वैल्यू कढ़ांगे ए वी प्लस बी डब्ल्यू, वी ते डब्ल्यू दी वाली वैल्यूज इत्थे पुट कर दित्तियां आपने, ए ते बी नू आपां अंदरली साइड ले गए, ए इंटू अल्फा ई वी ए बी इंटू बीटा जे डब्ल्यू जे स्केलर्स के नाल इनू मल्टीप्लाई कर दिता, क्योंकि ए भी स्केलर है बीटा भी स्केलर है तो ए ते बी भी अपने को स्केलर है, अल्फा बीटा भी स्केलर दे नाल स्केलर्स नू स्केलर नाल मल्टीप्लाई कर दिता। फिर इन्हां नू खोल के लिख लता आपने, जो खोल के लिखा तो अपने को लीनियर कंबीनेशन बन गया। तो मीनस की है ए बी प्लस बी डब्ल्यू नू भी आपां एक्सप्रैस कर सकते हैं एज ए लीनियर कंबीनेशन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ वैक्टर्स। ठीक है, तो जो आप इन्हों एक्सप्रैस कर सकते हैं तो यह किदे एलीमेंट्स बन गए अपने को, वेयर V1 V2 तो W1 सोन ये सारे S दे एलीमेंट्स है। तो इट मीनस ए वी प्लस बी डब्ल्यू किदा एलीमेंट हो गया, LS का एलीमेंट हो गया। ए तो बी स्केलर्स है, ए बी तो डब्ल्यू LS दे एलीमेंट है, तो ये रिलेशन इनू चला गया। तो इट मीनस LS इज द सबस्पेस ऑफ VF, यानी कि लीनियर स्पेन जिहड़ा हुंदा है वो भी की हुंदा है अपने को सबस्पेस ऑफ VF हुंदा है। क्लीयर, उस तो बाद एक होर चीज़ ध्यान च रखनी है कि जे अपने को VK एनी एलीमेंट ऑफ S है तो VK नू आपां लीनियर कंबीनेशन लिख सकते हैं 1 इंटू VK वेयर K इक्वल टू 1 to n ले लिए। जब आप VK नू लीनियर कंबीनेशन लिख सकते हैं तो वो एलीमेंट किस चला जाएगा, लीनियर स्पेन चला जाएगा। एलीमेंट एस का लत्ता सी चला LS च चला गया, तो इट मीनस जो सैट होंदा वो हमेशा लीनियर स्पेन का की होंदा है, सबसैट होंदा है। S इज़ द सबसैट ऑफ LS। नैक्सट जी डेफिनेशन हैगी वो अपने को हैगी है समोलेस्ट सबस्पेस, सब तो छोटा सबस्पेस केड़ा होंदा है कि जे V अपने को वैक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F एंड S इज़ द सबसैट ऑफ V। ठीक है, एस भी वी का सबसैट है, दैन ए सबस्पेस W ऑफ VF। ठीक है, तो जो W भी जो है वो की है VF की सबस्पेस है। W is the subspace of VF is called the smallest subspace of V। ठीक है, containing S। तो मीनस जो सबस्पेस W है ऑफ VF इनू आप स्मोलेस्ट सबस्पेस कदों कहांगे जरा कि S नू कंटेन करता है। दैट इज़ फर्स्ट कंडीशन की होनी चाहिए है S भी W का सबसेट होना चाहिए है। सैकेंड कंडीशन की होनी चाहिए है कि जे उत्थे कोई होर V का सबस्पेस एग्जिस्ट करता है, सपोज जिमें कि W1 इज़ द सबस्पेस ऑफ VF। ठीक है, जे V का कोई होर भी सबस्पेस एग्जिस्ट करता है तो S W1 का सबसैट होएगा तो W भी W1 का सब, क्योंकि आप स्मोलेस्ट करना ना तो स्मोलेस्ट तो ताइयों होएगा कि ए भी सबस्पेस है, ए भी सबस्पेस है तो बट यही की होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, मीनस W की है W1 का सबसैट। क्लीयर, तो ये दो कंडीशनस ध्यान च रखनी है कि स्मोलेस्ट सबस्पेस कदों होंदा है, किसी भी सबस्पेस नू आपां स्मोलेस्ट सबस्पेस कहांगे जे S W का भी सबसैट होवे तो जे कोई होर सबस्पेस भी उत्थे हैगी है तो W ओदा भी सबसैट होगी। क्लीयर, ये अपने को होगी स्मोलेस्ट सबस्पेस की डेफिनेशन होगी। तो इस जो स्मोलेस्ट सबस्पेस कंटेनिंग S है इनू आपां डिनोट करते हैं दिस वन लाइक दिस। ठीक है, स्मोलेस्ट सबस्पेस नू आपां इस तरह ब्रैकेट्स दे विच शो कर सकते हैं। उस तो बाद नैक्सट अपने को आंदा फॉर एवरी सबसैट S ऑफ ए वैक्टर स्पेस वी है देयर एग्जिस्ट हरेक वैक्टर स्पेस यूनीक स्मॉलेस्ट सबस्पेस ऑफ VF कंटेनिंग S जरा है स्मॉल यूनीक जरा है अपने को स्मॉलेस्ट सबस्पेस एग्जिस्ट करता है। क्लीयर,
यूनीक ही हुंदा, समोलेस्ट सब स्पेस आई नहीं हो सकती कि दो समोलेस्ट सब स्पेस उत्थे होण, दो या तीन, यूनीक एक सिंगल हुंदा। नैक्सट अपने को जी एग्जाम्पल है दैट इज़ कि टू शो दैट एल एस द लीनियर स्पैन ऑफ एस इज़ द समोलेस्ट सब स्पेस वेयर एस इज़ द सबसैट ऑफ वी एफ। हुण इत्थे तुहानूं देखो बेटा जी लास्ट दसी सी डेफिनेशन सीगी समोलेस्ट सब स्पेस की। हुण इत्थे आपां शो करांगे कि जिहड़ा एल एस हुंदा यानी कि लीनियर स्पेन हुंदा ओह की हुंदा किसी भी वैक्टर स्पेस का समोलेस्ट सब स्पेस हुंदा। क्लीयर, जे उत्थे कोई सैट एस एग्जिस्ट करता वी एफ का तो वह जो लीनियर स्पेन होएगा वह की होएगा समोलेस्ट सब स्पेस होएगा। ये चीज़ आप शो करनी है। तो इनू शो करने वास्ते आपने की लता गा कि वी का एनी सब स्पेस डबल्यू ले लिया। डबल्यू आपने एनी सब स्पेस वो वी लता सच दैट एस वी की है डबल्यू का सबसैट है। क्लीयर, टेक एनी एलीमेंट वी बिलोंग्स टू एल एस। हुण इत्थे लीनियर स्पेन भी एग्जिस्ट करता, आपां ये चीज़ गिवन है लीनियर स्पेन एल एस। तो आपने एल एस का एनी एलीमेंट जो वी लता तो वी नूं आप लिख सकते हैं क्योंकि दिस इज़ द लीनियर कंबीनेशन ऑफ एलीमेंट्स। ये चीज़ आपने लिख लती। हुण आपां नूं पता है एस की है डबल्यू का सबसैट है, तो जिन्ने एस के एलीमेंट्स होणगे वो डबल्यू के भी एलीमेंट्स होणगे। तो वी जिहड़ा होएगा वो एस के एलीमेंट्स के कंबीनेशन है। तो मीनस V1 V2 सोन VM है जिहड़ा ये डबल्यू च भी चले गए। जे डबल्यू च चले गए तो डबल्यू आपां नूं पता सब स्पेस आपां लैके चले हैं तो इनू आपां लीनियर कंबीनेशन लिख सकते हैं α1 V1 प्लस α2 V2 सोन α VM बिलोंग्स टू डबल्यू हो जाएगा। तो मीनस आह जो समेशन है भी डबल्यू में चली जाएगी। तो मीनस वी की दा एलीमेंट्स हो जाएगा डबल्यू का एलीमेंट हो गया, वी डबल्यू का एलीमेंट हो गया। जे वी आप एलीमेंट एल एस का लेके चले सीगे चला ये डबल्यू च गया तो मीनस एल एस इज़ द सबसैट ऑफ डबल्यू। क्लीयर, जे एल एस डबल्यू का सबसैट है तो एस आपां नूं ओबीअसली पता है एल एस का सबसैट होंदा ही पिछे तुहानूं दस्सिया सी। तो इट मीनस एल एस इज़ द समोलेस्ट सबसैट। दोनों कंडीशन जिहड़ियां समोलेस्ट सब स्पेस दियाँ इत्थे अपने को सैटिस्फाई हो गई। तो इट मीनस की हो गया एल एस इज़ द समोलेस्ट सब स्पेस ऑफ वैक्टर स्पेस। हैंस एल एस नूं आपां लिख सकते हैं इस तरह भी लिख सकते एल एस इज इक्वल टू दिस वन क्योंकि तुहानूं इत्थे दस्सिया समोलेस्ट सब स्पेस नूं आपां इस तरह डिनोट करते हैं। तो एल एस किहदे इक्वल हो जाएगा लीनियर स्पेन दिस वन। ये दोनों ब्रैकेट्स दे विच अपने को इक्वल टू आ जाएगा। नैक्सट अपने को ਜਿਹੜੀਆਂ है कुछ थ्योरम्स है मैं ਤੁਹਾਨੂੰ नैक्सट लैक्चर च करवानी है। थैंक यू बेटा।